Yes. Yes, plants do not do not take in carbon, do not no transpiration takes place during night and in plants because the stomata is closed. But plants absorb water from the soil and the water is transported upwards and water is present in them and they bulge out. Okay, that is true. Then why they not? Because the thing is, first of all, speed of absorption of water at night is bit slow, beta. It is not that much fast if you compare to the daytime. Understood this? Yes, yes. Okay. So first, the second thing is that why it is not fast, because outside environment is very much comfortable for the plant, so they don't need much water. Just compare yourself. When the environment is cool and environment is very soothing, you don't require much water for drinking. Am I right? Yes. And when it's too hot, humid, then you require water to drink again and again and again. So that is a need of yours. Okay. So similarly at night, no matter water is being absorbed, but that water, you have studied xylem and its other parts. You have studied units of xylems, xylem parenchyma and all that. Yes, yes. Okay, so if excess of water is going upward, then you have lot of storage space also. Their water will be stored for the night. Is it clear to you? Yes, yes. Okay, fine. Anything else? No, miss. Okay, Shweta. Shweta, any doubts, beta? No, ma'am. Okay, fine. Ayush. But then we have to write the third answer later. Shweta, I'm not getting your voice clear, beta. Ask me again. Just now Siddharth asked you the question number 3. Three. So do we write the question number 3 later on a copy? Yeah, just wait for it. Keep it aside and wait for it. So we will see to it. Understood? Okay, ma'am. Okay. Let me discuss it so that you will get the appropriate things to write. Okay. Fine. So Ayush, any doubts? Yes, miss. Yes. Which one? Miss, number 7, short answers. Short answer number 7. Uh, alongside in enlarged diagram of a part of root. That one. Miss, ma'am, I have to draw a diagram also. Draw arrows on the diagram to show the movement of. In your notebook, you are asking me. Yes, ma'am. How much time it will take, beta? Just draw it. Okay, ma'am. Thank you. Okay, fine. Okay, and Ashish has also joined us. Ashish, any doubts, beta, in solving the exercise? Yes, ma'am. Which one? Ma'am, fill in the blanks A. Fill in the blanks. Okay, transportation in plants is carried out by dash system. Which system, beta? Conducting. Yes, कंडक्शन. कंडक्शन करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दैट इज कंडक्टिंग. तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हम किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, Yes, ma'am. तो दैट इज डन बाय कंडक्टिंग सिस्टम. आया समझ में? Yes, ma'am. एनी अदर डाउट्स? No, ma'am. ओके, बाकी सभी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने लिखे हैं? Yes, ma'am. ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है? No. ओके,
एक्सेप्ट दैट थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो थर्ड वाला है उसमें थोड़ा सा डाउट है, उसको छोड़ के बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, am I right? Yes, yes. Okay, fine. So leave that third question. We will discuss it later on. And have you means now this particular chapter transportation is thorough with in your mind? Is there any doubt regarding it? अच्छे से समझ आ गया है ये चैप्टर? Yes, yes. श्वेता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके एंड आयुष, आई थिंक आपके अगर जो डाउट्स हैं वो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लियर किया है ना कि हम करेंगे ये सारा चीज डिस्कशन। आपने देखा ना आज से लॉकडाउन हो गया है। Yes, yes. Okay, so right now the condition outside is not good, so wait till everything gets normal, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो हम फिर सबको जो थोड़ा सा जो भी आपका है वो that we will see and hopefully वो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ओके ओके आयुष? Okay, ma'am. गुड। सो अभी आप उसकी चिंता मत करो, हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो फिलहाल के लिए, ठीक है? सो दैट नाउ द चैप्टर शुड नॉट बी और मींस वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए। सो सी दिस, लेट्स बिगिन विद दिस दैट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, हमारे पास दो चैप्टर्स हैं रिप्रोडक्शन के, इसके बाद है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, नहीं इन ह्यूमंस। ओके, सो उसके बाद भी रिप्रोडक्शन है और अभी प्लांट्स का रिप्रोडक्शन है। बट प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बाद जो चैप्टर में रिप्रोडक्शन जो दिया है उसमें एनिमल का रिप्रोडक्शन का डिस्कशन भी है। ठीक है, थोड़ा सा जब आप वो सब पढ़ोगे ना, नाउ सी दिस, थोड़े से वर्ड्स जो हैं वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपको उसके एग्जांपल्स अलग है, इसके एग्जांपल्स अलग है। ठीक है, प्रोसेस का नाम एक ही हो सकता है बट एग्जांपल्स विल बी डिफरेंट क्योंकि वो एनिमल्स रहेंगे और ये प्लांट्स रहेंगे, तो ये चीज आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। अब हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ते हैं, तो सबसे पहले सभी को रिप्रोडक्शन मतलब पता है? ओके, सभी को पता है, वेरी गुड। रिप्रोडक्शन मतलब सॉरी जस्ट वेट, नाउ सी, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। अभी आपको पता है रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, दैट मीन्स हैविंग द यंग वंस और द न्यू ऑर्गेनिजम्स, है ना, उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सो वर्ड वाइज मतलब क्या है वो चीज समझो। रिप्रोडक्शन मीन्स, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस, ये चीज तो पता है आपको। प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, ओके। एंड री मतलब फिर से, री मतलब अगेन,
again, and production मतलब to produce. ओके, मतलब अपने जैसी चीज को वापस से प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ये सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. हम अभी इस चैप्टर को पढ़ेंगे. सो लेट्स प्रोसीड. शैल आई चेंज द स्लाइड? सी दिस. अब रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो 2 टाइप्स के हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. ठीक है. नाउ दीज 2 reproductions when you say asexual and sexual, तो एसेक्सुअल का मतलब होता है इसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है. ठीक है. दैट मीन्स अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है, आपने फ्लावर देखा है ना, फ्लावर होता है इस तरीके से. फ्लावर को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट. फ्लावर रिप्रोडक्शन यूनिट होता है. जैसे ह्यूमन और ह्यूमंस में, बाकी सारे एनिमल्स में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना. ठीक है. बस उसी तरीके से प्लांट्स में फ्लावर रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बट कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? वो ही चीज किस में आएगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. आया समझ में सभी को? दैट मीन्स विदाउट फ्लावर्स. फ्लावर नहीं है तो भी रिप्रोडक्शन करना है, so that is asexual reproduction in plants. और सेक्सुअल मतलब जिसमें फ्लावर्स हैं तो उसका अलग सिस्टम है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट एसेक्सुअल. देखो एसेक्सुअल के कितने सारे टाइप्स हैं. बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. Is it clear to you? Yes. Okay, fine. So see this. Now अब हम सभी इन सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे. आपको लिखना है इसे. डू राइट इट. डन. आशीष, आयुष, आप लोगों का हो गया? मैम 1 मिनट. या Miss, I have completed. ओके फाइन.
Okay. Now I am changing. Okay. See this. This is called binary fission. ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं। फिजन मतलब क्या होता है बेटा? फिजन मतलब डिवीजन। फिजन मतलब डिवीजन और बाइनरी मतलब 2। ओके, सो डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स is called binary fission. ओके, डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, एक जो सेल है वो 2 पार्ट में बट जाता है तो वो क्या बोलते हैं उसको? बाइनरी फिशन। इज इट क्लियर? ओके, बाइनरी का मतलब होता है 2 और डिविजन होता है एक डिवीजन। ऐसा डिवीजन जिससे दो दो सेल्स आपको मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अंडरस्टूड दिस? तो देखो, एक ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बट वो धीरे धीरे डिवाइड होते होते 2 बन गया, ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं? डॉटर। अच्छा, अब आप बॉयज हो तो आप बोलोगे मैडम सन सेल क्यों नहीं बोलते हैं? बायोलॉजी ऐसी है बेटा, बायोलॉजी सबको डॉटर बना देती है, किसी को भी सन नहीं रखा है उसने, ठीक है। सो जब भी जो नए सेल्स बनेंगे उन सभी को हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, आप देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ वो ध्यान से देखना। One cell is there, it is dividing and giving you 2 daughter cells. अब ये 2 डॉटर सेल्स हैं, अब वो पेरेंट बन गए हैं तो वो आगे फिर से डॉटर सेल्स देंगे, 2 डॉटर सेल्स, ये भी 2 देगा, ये भी 2 देगा, फिर आगे जाएगा तो ये 2 देंगे, फिर उसके आगे जाएंगे तो ये वाले 2 हो जाएंगे। समझ रहे हो कैसे डिवाइड होगा? आ रहा है समझ? ओके, दिस मीन्स जब भी बाइनरी फिजन होता है तो आपको जो नंबर ऑफ सेल्स जो इंक्रीज होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक सेल ने 2 डॉटर सेल दिए फिर वो है ना डॉटर सेल चुपचाप बैठे हैं, अब वो कुछ नहीं करेंगे, वो आगे और डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, बट वो प्रोड्यूस कैसे करेंगे? एक सेल में से हमेशा आपको 2 ही सेल्स मिलेंगे, दैट इज कंपल्सरी, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ये चीज समझ में आ रही है? गुड, तो दैट मीन्स हमको जब भी आगे सेल्स मिल रहे हैं वो 2 के मल्टीपल्स में मिल रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 के में, दैट मीन्स 2 से सेल बनेंगे 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, then 108, then proceed, आपको आगे लेके जाना है, मेरे को उसके आगे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं आता, ठीक है, आप ही कर लेना। सो आप ये सोचो कि जब भी बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है तो इतनी जल्दी जल्दी जो सेल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम कैसे बढ़ते हैं, हमको कैसे पता चलेगा, हमने तो कभी देखा ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं है। तो ये आप रोज आपके घर में होता है, मैं बताऊं कहाँ पर? कहाँ पर होता है? आप लोग दही खाते हो? ठीक है, यस, सभी लोग खाते हैं। तो मम्मा को दही बना मतलब कर्ड को
बनाते हुए देखा कैसे दूध से कर्ड बनता है? Yes, ma'am. मम्मा क्या करती है कि दूध को गर्म करके रखती है, फिर उसमें स्पून ठीक से टेम्परेचर हो जाता है, फिर स्पून फुल ऑफ कहीं से दही लेके उसमें डाल देती है। यही करती है ना मम्मा? Yes, ma'am. गुड। Yes, ma'am. हाँ, जिसने देखा है उसको जरूर पता होगा। तो स्पून आपने जब दही का लिया तो आपने क्या किया, अब उसके अंदर एक बैक्टीरिया डाल दिया। अब वो बैक्टीरिया के पास इतना सारा दूध है कर्ड बनाने के लिए, उस बैक्टीरिया को बहुत मजा आता है दूध खा जाओ और कर्ड बना दो दूध को। तो वो क्या करेगा, वो अकेले तो सारा काम नहीं कर सकता है, तो वो खुद को डिवाइड करेगा। जब वो डिवाइड करेगा तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो दूध को कर्ड बनाने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। तो आप सोचो कि पूरी रात वो डिवाइड होते रहते हैं, तो सुबह जो वो टेस्ट है वो खट्टा खट्टा हो जाता है। ओके? अच्छा, अगर आप अपनी मम्मा के साथ थोड़ा सा हेल्प करवाते हो तो आपको ये भी पता होगा कि अगर अभी जैसे बहुत गर्मी होती है, जब बहुत गर्मी हो रही होती है, तो मम्मा क्या बोलती है कि दही को फ्रिज में रख दो वरना और खट्टा हो जाएगा। Yes, ma'am. ये श्वेता ने सुना है, बाकी बॉयज आप लोगों ने नहीं सुना? Yes, ma'am. आशीष ने भी सुना है। सिद्धार्थ, आयुष Yes, ma'am. सुना No, है? ma'am. आयुष ने नहीं सुना? No, ma'am. क्यों नहीं सुना? मम्मा की हेल्प किया करो आज से। Okay, ma'am. गुड, ठीक है। मम्मा को पूछना कि मम्मा गर्मी में हम दही को फ्रिज में क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं, मम्मा बोलेगी कि दही खट्टा हो जाएगा। अच्छा, अब बेचारी मम्मा को तो पता नहीं है ना कि अंदर बाइनरी फिजन हो रहा है, मम्मा को पता है? नहीं पता है। तो आप अपनी मम्मा को बता सकते हो क्या होगा कि अगर दही फ्रिज में नहीं रखेंगे और बाहर रखेंगे तो गर्मी में ये बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होता है, और वो जितना जल्दी डिवाइड होगा उतना दही का टेस्ट जो है वो सार हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. और अगर आप उसको फ्रिज में रख दोगे तो ये बैक्टीरिया को ठंडी लग जाती है, तो फिर वो डिवाइड नहीं होता है, होता भी है तो बहुत धीरे 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 होता है, जल्दी जल्दी नहीं होता है। बट बाहर रख दोगे तो 20 मिनट्स में पूरा डिवाइड हो जाएगा। 20 मिनट्स में डिवाइड होता रहेगा। हाँ, हर 20 मिनट्स में आपको मल्टीपल ऑफ 2 मिलते रहेंगे, ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स में। लेकिन आप फ्रिज में रख दोगे तो ठंडी की वजह से वो डिवाइड नहीं हो सकता है, और होगा भी तो बहुत स्लोली, 1 दिन लगाएगा, पूरा 1-2 दिन लगाएगा खुद को डिवाइड होने में। तो फिर अगर जल्दी डिवाइड नहीं होगा तो दही का टेस्ट खट्टा नहीं होगा, और अगर आप बाहर छोड़ दोगे तो क्या होगा, जल्दी 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 डिवाइड होगा और उसकी वजह से दही बहुत जल्दी खट्टा हो जाएगा। आया समझ में? Yes, yes. अब मम्मा को बता पाओगे? Yes, ma'am. आयुष? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैं Ma'am, मम्मी, मेरी मम्मा को पता होगा। हाँ आपकी मम्मा को पता होगा, और जिसकी मम्मा को नहीं पता है उनको आप बता सकते हो ना। Yes, ma'am. और अगर आपकी मम्मा को पता है तो मम्मा को एक बार फिर से बता देना। Okay, ma'am. तो आयुष, मैं आपकी मम्मा को पूछूंगी फोन करके कि आयुष किचन में आपको हेल्प करता है कि नहीं, दही में और बाकी सारी चीजों में, पूछूं? Okay, ma'am. ठीक है। तो फिर देखो, मम्मा ने बायो नहीं पढ़ा है फिर भी मम्मा को कितना सब चीजें आ रही है ना? तो फिर आप तो पढ़ाई कर रहे हो तो आपको भी मम्मा का काम आना चाहिए थोड़ा सा। अंडरस्टूड? तो ये है बाइनरी फिजन, ये आपके घर में डेली ये चीज होती है। अंडरस्टूड? और फिर आपने पता है वो एड देखी है टीवी में, जब वो नहाते नहीं है तो बैक्टीरिया बढ़ जाता है बॉडी पे, फिर वो साबुन लगाते हैं तो बैक्टीरिया कम हो जाता है, Yes, ma'am. देखा है ना? तो वो वैसे ही अगर आप नहाओगे नहीं तो ये बैक्टीरिया जल्दी 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 बढ़ेगा और आपकी बॉडी में से स्मेल आएगा।
ठीक है, अभी गर्मी में स्पेशली ज्यादा। पर अगर आप उसको वॉश कर लोगे साबुन से और पानी से अच्छे से, तो बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो आपकी बॉडी से स्मेल नहीं आएगी। अंडरस्टूड दिस? क्लियर? सो दिस इज व्हाट द बाइनरी फिजन इज। इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब 2 के मल्टीपल्स में डिवाइड जब होता है कोई ऑर्गेनिज्म, उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। आया समझ में? Yes, ma'am. गुड। तो अभी आगे वाला पढ़ें। सी, बाइनरी फिजन के जैसा अब एक और होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो फिजन मतलब तो डिवीजन है, और मल्टीपल मतलब एक्स नंबर। इसका मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं, या कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे बाइनरी में तो हमारा फिक्स था कि 2 2 2 के मल्टीपल्स में इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितने भी नंबर में वो इंक्रीज हो सकता है, इसका कोई भी फिक्स नंबर नहीं होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। द नंबर इज नॉट फिक्स्ड। आया समझ में? नंबर यहाँ पर फिक्स नहीं है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बेसिकली अगर आप नंबर फिक्स नहीं है तो भी हम बोल सकते हैं कि 4 4 4 के मल्टीपल्स में डिवाइड होगा। आया समझ में? Yes. ओके, मतलब 4 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे डिवाइड होगा। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Good. So that is what the multiple fission is. Next is budding. देखो, ठीक है, बडिंग का एग्जाम्पल क्या है? कौन सा प्लांट बड करता है? ईस्ट। ईस्ट इज बेसिकली फंगस होता है जो बड करता है। देखो कैसे बड कर रहा है, ठीक, कितने सारे चेन में बड निकाले हैं उसने। अंडरस्टूड? तो ये ऐसे रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसे दूसरे सेल्स बनाता है। देखो बहुत सारे बर्ड्स हो जाते हैं ना जब यहाँ पर, तो फिर क्या होगा? ये जो बर्ड है वो टूट के अलग गिर जाएगा, तो वो नया ईस्ट बन गया। ये टूट के अलग हो जाएगा, तो ये नया ईस्ट बन गया। आया समझ में? ठीक है, तो ये जो है ईस्ट है। ईस्ट कहाँ पर यूज होता है? यस, बेकरीज में। आप ब्रेड खाते हो, आप इतनी सारी जो आपके यहाँ बेकरी के ब्रेड प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रेड से बनी हुई चीज है, तो बेकरी में क्या डालते हैं उसके अंदर? क्यों ब्रेड इतना सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है? क्योंकि उसके अंदर क्या डालते हैं? ईस्ट। ठीक है, उसके अंदर डालते हैं हम लोग ईस्ट। ये अच्छे फंगस हैं, इनको आप खा सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे? यस बेटा। मैम, एक्टिव यीस्ट और नॉर्मल यीस्ट में क्या डिफरेंस है? ओके, एक्टिव ईस्ट जो है ना बेटा, वो किचन वगैरह में यूज होता है, मतलब होटल्स में या इन सब जगह पर। ये इसलिए यूज होता है कि इसको डालते ही वो चीजों को फ्लफी बना देता है और आप जल्दी जल्दी कुक कर सकते हो, उसे एक्टिव ईस्ट बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो किचन, क्योंकि किचन में अगर ईस्ट एक्टिवेटेड नहीं होगा, ईस्ट को सपोज ईस्ट को एक्टिवेट करने में आपको 24 आवर्स 48 आवर्स लगने वाले हैं, और आपके घर में बहुत सारे गेस्ट ब्रेड खाने आने वाले हैं, तो आप बना पाओगे इतनी जल्दी? हाँ मैम। नहीं। मैम, यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए लूकवार्म वाटर में उसे डालना है। हाँ, गर्म पानी में आप डालोगे तो ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट मतलब डिवाइड हो जाएगा। देखो हमने बैक्टीरिया पढ़ा, वो भी गर्मी होती है तो डिवाइड होता है। ईस्ट को भी थोड़ा सा आप गर्म पानी में डाल दोगे तो वो डिवाइड,
इन सबको गर्मी बहुत अच्छी लगती है। जब गर्मी होती है डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, ठंडी लगती है चुपचाप बैठ जाते हैं, डिवीजन नहीं करते हैं। आया समझ में? यस मैम। तो दैट इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग मतलब अपनी बॉडी से ही एक नया बड जैसा सेल बना के उसमें सब कुछ करके उसको अपने ऊपर अटैच कर लेना। फिर वो बड अपने आप टूट के गिर जाएगा तो फिर वो नया ऑर्गेनिज्म कंसिडर हो जाएगा, इंडिपेंडेंट लाइफ जिएगा। इज इट? ये जो फर्स्ट सेल है ना, फर्स्ट सेल, ये भी किसी का बड है, वहां से गिर गया और वो अभी ये काम कर रहा है। ऐसे ही इनमें से कोई एक सेल गिर जाएगा, वो भी इसी तरीके से काम करेगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? ओके, तो ये ड्रॉ करना है आपको पिक्चर। लेबल करने की जरूरत नहीं है, अगर ड्रॉ करना है तो कर। यस। मैम हम लोग गूगल पे देख के कर सकते ड्रॉ। हाँ, गूगल से तो आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो। गूगल पे से पिक्चर क्यों ड्रॉ करोगे? वो तो मैंने ही आपको दे दिया। गूगल पे आप क्या कर सकते हो पता है? क्या मैम? आप डाल सकते हो बडिंग ऑफ ईस्ट वीडियो। अगर आप वो डालोगे ना वीडियो, तो आपको ईस्ट सेल बर्ड कर रहा है वो पूरा वीडियो या एनिमेशन पूरा देखने को मिलेगा। तो आप गूगल का यूज जो है वो ऐसी सब चीजों देखने में लगाओ ना। यहाँ ड्रॉ तो अभी कर ही सकते हो। ओके मैम। गुड। Shall I change? आप सभी के स्कूल में छुट्टी हो गई है? ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन। यस मैम। Now see fragmentation. Shall I? देख रहे हो पिक्चर? यस। इसको बोलते हैं स्पायरोगायरा। इसको क्या बोलते हैं? स्पायरोगायरा। क्यों स्पायरोगायरा बोलते हैं अभी दिखाती हूँ आपको। क्योंकि ये जो है इसका स्ट्रक्चर वो स्पाइरल है। कैसा है? स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल है। तो अभी आप एक काम कीजिए, मैं इसको फोकस कर रही हूँ। देखो स्पाइरल स्पाइरल कुछ दिख रहा है आपको? अच्छे से देख लो। है ना? सारे स्ट्रैंड्स देखो सभी के सब स्पाइरल स्पाइरल है सब। ठीक है, तो इनको बोलते हैं स्पायरोगायरा। ये आपको माइक्रोस्कोप पे देखने को मिल सकता है, बहुत इजीली दिख जाता है। और अभी तो बारिश हुई है तो आपको बहुत अच्छे से मिल भी जा सकता है। बट अभी फिलहाल लॉकडाउन है, जब सब ठीक हो जाएगा तो हम माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो स्पायरोगायरा है वो बेसिकली ये जो है ये तो ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है, समझ लीजिए। आपको लेबलिंग्स पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल।
पर आप देखो इसके अंदर जो ये स्पाइरल 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 जो है वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो एक यूनिट है वो देखो एक बॉक्स में बंद है, एक स्पाइरल दिख रहा है आपको। ठीक है, ऐसे ढेर सारे बॉक्सेस एक के बाद इस पूरी लाइन को बनाते हैं। वो हमको इसमें बॉक्सेस क्लियर नहीं दिख रहे, वो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस क्लियर नहीं है, वो यू आपको तो कंटिन्यूअसली दिखाई दे रहा होगा। बट और ज्यादा माइक्रोस्कोप से अच्छे से देखेंगे ना, बड़े वाले माइक्रोस्कोप से, तो ऐसे पार्टीशन दिखेगा, थोड़ी थोड़ी दूर पे वो डिवाइड हो जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या, टूट के गिर जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है और गिर जाता है, टुकड़ा हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और जब भी ऐसे होता है, सपोज इफ दिस इज अ फ्रेगमेंट और वो टूट गया है, सपोज इतना पार्ट टूट गया तो वो नीचे गिर गया है इतना वाला पार्ट। अब ये नीचे जो गिर गया है वो जैसे ही जमीन पर गिरेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो नया स्पाइरोगायरा बनाने लगेगा अपने आप। वो क्या बना लेगा, नया स्पाइरोगायरा। दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट होना मतलब टू ब्रेक डाउन एंड टू फॉल ऑन द ग्राउंड, टूट के नीचे जमीन पे गिर जाना, दे आर दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और ये इस किस में देखने को मिलता है हमको, स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। अंडरस्टूड दिस? ओके, देखो ये भी एक पिक्चर है स्पाइरोगायरा का। सॉरी, ये दिख रहा है स्पाइरल स्पाइरल, यस मैम। है ना। देखो इसमें आपको ये डिवीजन अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, फिर यहाँ खत्म हो जा रहा है, फिर यहाँ खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ से ही वो टूट जाता है, कभी कभी टूट जाता है, जमीन पे गिरता है, फिर नया उगने लगता है। इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो है ये फर्न प्लांट है और ये है, ये मॉसस है। मॉस देखा है आप लोगों ने? देखा है, वेरी गुड। मॉसेस अवेलेबल होते हैं बहुत इजीली। ओके, अच्छा फर्न उसमें क्या आशीष? जो भी हाइड्रेटेड जगह होते हैं, जैसे कि सपोज वहां पे शायद पानी जब गिरता है तब मॉइस्चर अपने आप मिल जाता है। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। मैम लाइक वेल्स में जैसे कि जब बहुत ज्यादा दिन के लिए जब पानी रहता है ना, तो वॉल्स में से मॉइस्चर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। यस यस, अभी जैसे बारिश अगर कंटिन्यूअसली रहती है शुरू में, तो ये मॉसेस जो है वो आपको एकदम हार्ड स्ट्रक्चर पे ऐसा ग्रीन ग्रीन पैच होगा और उसमें ऐसा कुछ कुछ निकलता हुआ दिखेगा। राइट आशीष? यस मैम। हाँ, तो वो मॉसेस हैं। और ये है फर्न प्लांट, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, देखा है ये प्लांट? ये बहुत ही नॉर्मल प्लांट है, बहुत सारे लोग इसको घर में डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं, होटल्स वगैरह में लगा हुआ होता है डेकोरेशन में। बट ये इतना ज्यादा वाइल्ड प्लांट है, एकदम बोलते हैं ना जंगली पौधा, ये रोड पर कहीं पे भी उग जाता है। आपको पता है, आप यहाँ कोचिंग आते हो ना, यहाँ नीचे भी ये उगा हुआ है फर्न प्लांट। ठीक है, तो देखो अब ये रिप्रोडक्शन कैसे, ये सब प्लांट्स में क्या प्रॉब्लम है बेटा, ये लोग फ्लावर नहीं बना सकते।
तो रिप्रोडक्शन तो करेंगे। अब रिप्रोडक्शन के लिए क्या किया जाएगा, तो ये क्या, आप देखो इसकी पत्ती जो है वो ऐसे छोटे 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 बीड्स बन जाते हैं उसके ऊपर, मोती जैसे। और ये जो बीड्स होते हैं, अगर आप इनको ऐसे पंक्चर कर दोगे, उसको तोड़ दोगे, तो उसके अंदर से आपको ऐसे बहुत सारे डॉट 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 डॉट्स दिखाई देंगे। वो डॉट्स जो हैं वो इसके सीड्स हैं, इस पर्टिकुलर प्लांट के। तो वो जैसे ही जमीन पे गिरेंगे तो नया फन प्लांट ग्रो होने लगेगा। आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है। और ये बहुत सारे जब बीड्स बनते हैं तो पूरा प्लांट जो है वो इजीली बीडेड हो जाता है, पूरे पूरे प्लांट में बहुत सारे बीड्स बन जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. आपके घर, किसी के घर पे गार्डन है? हाँ, तो आपने तो फन देखा होगा बाबू। Yes, ma'am. तो ये जो फन प्लांट्स हैं वो डेकोरेटिव प्लांट्स में कंसिडर होते हैं और बहुत ही ज्यादा इजीली ग्रो हो जाते हैं, धूप में, छांव में, बेचारे कहीं पे भी ग्रो हो जाते हैं। इसको बहुत वाइल्ड प्लांट कंसिडर किया जाता है। ठीक है। और दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। राइट। अच्छा, अब एक काम करो आप लोग कि बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, और सॉरी बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन तक टेक्स्ट बुक रीड करो। अगर कोई भी वर्ड में डाउट होता है एक बार रीड कर लो, फिर सब अंडरलाइन करके रखो, मैं बताती हूँ कि क्या डाउट्स होंगे आपको। रीड इट।
Is it done? Yes, ma'am. Okay. Yes, miss. Done? Siddharth? Shweta? Ayush? Yes, miss. ओके बाइनरी फिशन में कोई डाउट है? एवरीबॉडी? हाँ आयुष क्या डाउट है? एंड कुछ डाउट नहीं है। अच्छा ओके फाइन तो बाइनरी फिशन क्लियर है ना? जो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है वो बोलना आ रहा है अच्छे से? Yes, miss. क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास ठीक है अच्छा बडिंग में किसी को कोई डाउट? नो मिस। ओके फ्रेगमेंटेशन में किसी को डाउट? नो मिस। सारे वर्ड्स क्लियर हैं? यस मिस। स्पोर फॉर्मेशन में डाउट? मिस मेरे को डाउट है। हम्म मैम ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब? ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब जिससे ऐसे पेड़ पौधे जिनसे हम जगह को या घर को या किसी भी स्पेस को सजाते हैं। किसी भी जगह को हम प्लांट रख के सुंदर बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। आया समझ में? यस मिस। मैम जर्मिनेट का मतलब? जर्मिनेट जर्मिनेट पूछा? यस मैम। जर्मिनेट मतलब ग्रो होना। Miss, हम्म miss, you told that in asexual reproduction, no flowers are involved. हम्म But in hibiscus, it is asexual reproduction takes place. It is a flower. हिबिस्कस से किसने आपको बताया बेटा हिबिस्कस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है? हिबिस्कस वो रेड फूल वाला प्लांट बोल रहे हो? Yes, miss. हिबिस्कस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है बेटा। ठीक है जस्ट होल्ड ऑन लेट मी शो यू।
इसी प्लांट की बात हो रही है। इस प्लांट की बात कर रहे हो बेटा? हाँ, ये हिबिस्कस है, बट इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। आपको किसी ने बताया है? ओके, ये हिबिस्कस है, रेड वाला फ्लावर, जिसमें आपने बताया कि रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल नहीं होता है, सेक्सुअल ही होता है। क्लियर? गुड। सो ये एक क्वेरी था। और किसी का कोई और क्वेरी है एसेक्सुअल में? गुड। सो नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो स्टेम से, रूट से और लीफ से, सभी से हो सकता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या, कि जो वेजिटेशन है, जैसे आपने पुदीना देखा है, पुदीना? यस मैम। पुदीना को आप मिट्टी में डालोगे तो वो धीरे धीरे अपने आप ग्रो होना शुरू कर देता है। यस मैम। या तो फिर ग्रास भी, ग्रास देखा है आपने गार्डन में? आप एक ग्रास को खींचते हो तो कितना लंबा ग्रास का धागा जैसा होता है वो खींच जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसकी स्टेम भी रिप्रोडक्शन कर सकती है, जिसका रूट भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, और लीफ भी उसका रिप्रोडक्शन कर सकता है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये हम चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड दिस? क्लियर? ओके, एनी डाउट्स? नथिंग? और किसी को ऐसे फ्लावर में कुछ डाउट है, किसी पौधे में? नो डाउट्स? हाँ मैम। मैम बार्ले ग्लास कौन सा रिप्रोडक्शन का होता है? विच वन बेटा? बार्ले ग्रास। स्पेलिंग? BARLEY। BAR? LEY। बार्ली? यस मैम। बार्ली देखा है आपने? बार्ली क्या होता है बताओ? मैम वो एक तरह का व्हीट ग्रास ही होता है, मेरे मेरे घर में है। ओके, एंड उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके मैम। बार्ली, वेट, ऐसा वाला है, दिखाती हूँ मैं आपको। पहले आप लोग आइडेंटिफाई करो क्या पूछ रहे हो।
क्या सोच रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता है। नो मैम, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं मैम, जो जिसको जॉब बोलते हैं ना, जॉब हिंदी में। देखो, ऐसा है? नो मैम। ऐसा नहीं है। आप एक काम करना, जो आपके घर पे ग्रो होता है ना, यस मैम। उसका पिक्चर क्लिक करके या फिर वो थोड़ा सा तोड़ के आप नेक्स्ट क्लास में वीडियो में दिखा देना। ओके मैम। मैम, जो जिसको जॉब बोलते हैं ना, JAU। जो, यस ओके। मैम, उसको तो नवरात्रि में भी यूज करते हैं बहुत जन। जो इज समथिंग, सी आई, मेरा हिंदी वो इतना शायद मुझे नहीं पता होगा बेटा, आप मुझे शो कर देना। ओके मैम। ओके। ओके मैम। आई थिंक इसके ही दाने दाने निकलते हैं। यस मैम, आई थिंक सो। Ask your mom. Just have a screenshot and ask your mom. नहीं, वैसे मैम उससे मैंने ही फाउंड किया था। Okay, but have a screenshot and ask your mom. मैम कि मम्मा ये दोनों सेम है कि अलग है? ठीक है? ओके मैम। ओके। बाकी किसी को कोई डाउट? ये डालिया में कौन सा डालिया, डालिया में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है बेटा। एक मिनट, मैं आपको शो कर देती हूँ। पहली बात तो स्पेलिंग मुझे बताओ, आप किस चीज के लिए पूछ रहे हो? डी, सॉरी, कहाँ गया? DAHLIA, वो पूछ रहे हो आप? DAHLIA, फ्लावर डालिया पूछ रहे हो? फ्लावर होगा तो बेटा वही होगा, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट मी शो यू, इज इट दिस? फ्लावर है ना बेटा, तो फ्लावर होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। फ्लावरिंग जो है बेटा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है? अभी आपको पहले नेक्स्ट क्लास में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पढ़ाऊंगी,
जब आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है, ठीक है। Yes, miss. गुड, सो यू कैन लीव एंड हैव अ गुड डे। और कोई बीमार तो नहीं पड़ा है ना? बाहर नहीं जाना है किसी को भी, ठीक है। चलो, ओके मैम। गुड बाय एंड हैव अ नाइस वीकेंड। गुड आफ्टरनून। गुड बाय बेटा।